ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ۔ ریاستی تحقیقاتی ایجنسی ایس آئی اے نے جنوبی کشمیر کے اننت ناگ اور پلوامہ اضلاع میں کئی مقامات پر مارے چھاپے، ٹیرر فنڈنگ کے سلسلے میں ہوئی کارروائی۔ ایل جی نے جے این کے یو ٹی کے سب سے بڑے سٹارٹ اپ فیسٹیول کا کیا افتتاح۔ سرمایہ اور دیگر وسائل تک رسائی فراہم کرنے، جدت طرازی اور کاروباری صلاحیت کو فروغ دینا مقصد۔ مرگن ٹاپ رابطہ سڑک خستہ حالی کا شکار، شاہراہ پر مرمت اور دیگر تعمیراتی کام دوبارہ شروع کرنے کا لوگوں کا مطالبہ۔ اور کرگل سول سوسائٹی نے فلسطین کی حمایت میں کیا کینڈل مارچ کا انعقاد، بہادر فلسطینیوں کے تئیں اپنی غیر متزلزل حمایت اور یکجہتی کا اظہار۔ ریاستی تحقیقاتی ایجنسی ایس آئی اے نے جنوبی کشمیر کے اننت ناگ اور پلوامہ اضلاع میں کئی مقامات پر چھاپہ مار کارروائی انجام دی۔ یہ چھاپے ٹیرر فنڈنگ کیس کے سلسلے میں مارے گئے۔ ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے بدھ کی الصبح سری نگر سمیت جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے گئے۔ یہ کارروائی جموں کشمیر پولیس، سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور ریاستی تحقیقاتی ایجنسی نے مشترکہ طور پر انجام دی۔ ذرائع کے مطابق چھاپہ مار کارروائی ٹیرر فنڈنگ فراہم کرنے کے سلسلے میں انجام دی گئی ہے۔ چھاپے کے دوران کئی مشتبہ افراد کے رہائشی مکانات کی تلاشی لی گئی۔ اس دوران کئی الیکٹرانک آلات و دیگر دستاویزات کو ضبط کیا گیا۔ سرکاری طور پر اس کارروائی سے متعلق وضاحت ابھی نہیں کی گئی ہے۔ ایل جی نے جے این کے یو ٹی کے سب سے بڑے سٹارٹ اپ فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ یو ٹی انتظامیہ ایک سٹارٹ اپ ماحولیاتی نظام بنانے کے لیے پرعزم ہے اور سرمایہ و دیگر وسائل تک رسائی فراہم کرنے، جدت طرازی اور کاروباری صلاحیت کو فروغ دینے اور دوسرے سٹارٹ اپس اور سرمایہ کاروں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کے مواقع فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ طلباء اور ابھرتے ہوئے کاروباری افراد کی تخلیقی صلاحیتوں کو جاری کر کے ہم علم کی مصنوعات اور دانشورانہ املاک کے لحاظ سے جموں کشمیر اور قوم کے لیے اعلیٰ شرح نمو اور براہ راست فوائد کو یقینی بنا سکیں گے۔ جے این کے یو ٹی کے سب سے بڑے سٹارٹ اپ فیسٹیول کا افتتاح کیا گیا، جس کا اہتمام جموں یونیورسٹی نے جے این کے سٹارٹ اپ ایسوسی ایشن، ٹورزم ڈپارٹمنٹ، جے این کے بینک اور جے این کے دیہی معاش مشن کے تعاون سے کیا تھا۔ میگا ایونٹ نے ایک پلیٹ فارم پر مختلف سٹیک ہولڈرز اور سرمایہ کاروں کو اکٹھا کیا۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ سٹارٹ اپس نیٹ ورک کے دور میں قوت کی تشکیل کی معیشت کی عکاسی کرتے ہیں۔ یونیورسٹی اور کالج کیمپس خیالات کے مائع پلیٹ فارم کے طور پر جانا جاتا ہے اور ہم سے بہتر کر سکتے ہیں ایک ماحول پیدا کرنے کے لیے تاکہ ان عظیم خیالات کا احساس کیا جا سکے۔ ایک مثالی کاروباری آب و ہوا کے لیے یہ ضروری ہے کہ کراس کیمپس تعاون، سرشار کام کی جگہ سرپرستی کے پروگرام، صنعت تعاون اور جدت طرازی کے لیے گاڑیاں جیسی سہولیات فراہم کی جائیں۔ اس طرح کے قابل ماحول اور چیلنجز نئی بدعت اور حل کو بھڑکا دیں گے۔ ایل جی نے اپنے خطاب میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ لے کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جموں کشمیر کا اب تک کا سب سے بڑا ایونٹ ہے۔ اس کے لیے میں جموں وشو ودیالیہ کے کلپتی اور اس آیوجن سے جڑے ہوئے سبھی لوگوں کے پرتی ہردے سے آبھار ویکت کرتا ہوں۔ بدھائی بھی دینا چاہوں گا کہ اس انیشیٹو کے دوارا سبھی سٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پر چرچا کے لیے آمنترت کیا گیا ہے۔ 5 ایم او یوز تتھا اسٹارٹ اپس کے ایکو سسٹم کو سشکت بنانے کے لیے 5 مہتوپورن انیشیٹوز کو بھی شروع کیا گیا ہے۔ میں اس کے لیے بھی سبھی سٹیک ہولڈرز کو بدھائی دینا چاہوں گا۔ جموں یونیورسٹی کو گرین کیمپس کے روپ میں ٹرانسفارم کرنے کی دشا میں ابھی یونیورسٹی نے آدھی دوری طے کر لی ہے اور بچے ہوئے 1.1 میگا واٹ کے لکش کی پراپتی کا کام بھی جلدی پورا ہو، ایسی میری اپیکشا ہے۔ ریسرچ تتھا انوویشن کو بزنس پلان میں
कन्वर्ट करने तथा CIITs के इंफ्रास्ट्रक्चर को इनोवेशन एवं स्टार्टअप के इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है। मुझे लगता है कि ये स्टेप जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप रिवॉल्यूशन की अपेक्षा पर जरूर खरा उतरेगा। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने आज के इस कार्यक्रम और स्टार्टअप से जुड़ी प्रगति पर चर्चा की है। मैं आप सबसे कुछ ऐसी बातें करना चाहूँगा। कुपवाड़ा ज़िले के हंदवाड़ा में हर पंचायत हलके में बैक टू विलेज प्रोग्राम के 5वें मरहले का आगाज़ किया गया। ये प्रोग्राम 16 नवंबर तक चलाया जाएगा। यूनिवर्सिटी वही पूरा में बैक टू विलेज प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डायरेक्टर कमांडिंग ऑफिसर मोहम्मद एहसान मीर ने प्रोग्राम की सदारत की। दीगर पंचायत हलकों में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम्स मुनक्किद हुए। इससे दौरान अफसरान ने अपनी मुतल्लिका पंचायतों में मौजूद रहे और लोगों के मसाइल पर बात की। अफसरान ने यकीन दिलाया कि जो भी काम किसी वजह से रुके पड़े हैं इनको जंगी बुनियादों पर हल किया जाएगा। इस मौके पर PDC चेयरमैन लंगेट शौकत हसन पंडित के अलावा पंचायत मेंबरान मौजूद थे। एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, ये बैक टू विलेज प्रोग्राम चला के। बैक टू विलेज प्रोग्राम में जो लोगों की भलाई की स्कीमें चलती हैं उनका खुद मुशाहिदा करना, बनफ्स नफीस उनके डोर स्टेप तक इन स्कीमों का पहचाना, यही बैक टू विलेज का मुद्दा मकसद है। बैक टू विलेज 4 में जितने भी टारगेट्स दिए गए थे उनका हम इस वक्त अहाता कर रहे हैं, उनका असेसमेंट हो रहा है। हम देख रहे हैं कि कहां तक हम वो टारगेट्स अचीव करने में कामयाब हुए हैं और इंशाल्लाह बैक टू विलेज 5 में एक बार फिर टारगेट्स दिए जाएंगे। महकमों को ये वादा बंद किया जाएगा कि जो पब्लिक की डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके उनको अमली जामा पहनाया जाए। बैक टू विलेज का ये 5th फेज़ जो है वो चल रहा है इस वक्त। मकसद इसका यही है कि लोगों के जो मुश्किलात है, मसाइल है या जो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो भी मसाइल है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, या हमारा जो GPDP जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो है वो भी बनाना है, उस हवाले से भी प्रोग्राम चल रहा है। लिहाजा आ रहे हैं, हमने जो अपने PRIs है, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो है, और ज़ियादत कुछ शहरी है वो लोग भी आ रहे हैं। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि लोग आए और इसमें शिरकत करें ताकि जो भी लोगों के काम है, जो भी मसाइल है, जो भी मुश्किलात है गाँव में, वो यहाँ पर रख ले। आप हमेशा लोगों की कवरेज करते हो, लोगों के मसाइल की कवरेज करते हो। आज हमारा B2V5 चल रहा था। जितने भी काम B2V4 में रखे थे 100% नहीं हुए, लेकिन फिर भी हम कहेंगे 70% काम हुए। अभी बहुत कुछ होने वाला है। देखिए, एक मुर्गन टॉप राबिता सड़क खस्ता हाली का शिकार है। मज़कूरा शाहराह पर मरम्मत और दीगर तामीराती काम दोबारा शुरू किया जाए, इसका लोगों ने मुतालबा किया। शोबे सियाहत को फ़रोग़ देने के हवाले से जहाँ हुकूमत की जानिब से आए रोज़ बुलंद बांग दावे हो रहे हैं, वहीं ज़मीनी सूरत हाल इन दावों के बरक्स पाई जाती है। जनूबी कश्मीर का तवारीख़ी ज़िला अनंतनाग, जो पूरी दुनिया में अपने हुस्न जमाल, आबी वसाइल और सेहत अफ़ज़ा मकामात के लिए मशहूर और मारूफ़ हैं। इन सेहत अफ़ज़ा मकामात में ज़िले के कई सियाहती मकामात ऐसे हैं जो ताहाल सियाहती नक्शे से ओझल हैं, जिसमें अनंतनाग के सबसे बड़े सब ज़िला कुकरनाग के कई इलाके बशमूल संथन टॉप, मुर्गन टॉप, मादरनाग, जोहरनाग सहरे फहरिस्त है। गरचे मुर्गन टॉप के लिए सन 2021 के माह अक्टूबर में तामीराती काम मुकम्मल किया गया था, ताहम कुछ अरसा गुजर जाने के बाद ही मज़कूरा सड़क खस्ता हाली का शिकार हो गई, जिसके बाइस न सिर्फ मड़वा और कुकरनाग के लोगों को मुश्किलात का सामना दरपेश है, बल्कि मुर्गन टॉप पर आने वाले सयाह भी मुश्किलात से दो चार हैं। मकामी लोगों के मुताबिक मज़कूरा सड़क को 2 साल कबल तामीर किया गया था। बाद अज़ां इलाके में मकामी सयाहों का रश काफ़ी हद तक बढ़ गया था, जिससे न सिर्फ गावरन के लोग खुश दिखाई दे रहे थे, बल्कि
कि सियाहत से वाबस्ता अफराद फूले नहीं समा रहे थे। ताहम रवां साल सड़क की खस्ता हाली को देखकर मकामी सयाहों ने मुरगन टॉप आने से गुरेज किया है। उन्होंने कहा कि सड़क के किनारों पर तामीर की गई दीवारें सड़कों के बीचों बीच बिखर गई हैं, जिससे सड़क के अक्सर मकामात पर गहरे गड्ढे पड़ गए हैं, जबकि बर्फीले अयाम में भारी बर्फबारी के नतीजे में सड़क के मुख्तलिफ मकामात पर चट्टानें खिसक जाने के सबब मज़कूरा शाहराह पूरी तरह से खस्ता हाल हो चुकी है। नतीजतन सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से सयाह यहाँ आने से गुरेज कर रहे हैं। लोगों का मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस सड़क को दोबारा तामीर किया जाए ताकि ये सयाहों के लिए आमाजगाह बन सके। बनाया गया उस वक्त ठीक बनाया गया था, उसके बाद 2 साल हो चुकी है तो ये रोड बहुत खस्ता हाल हो चुका है। तो ड्राइवर लोगों को भी बहुत तंग तलबी हो रही है, टूरिस्ट वाले आए हैं उनको भी बहुत तंग तलबी हो रही है। तता पानी के लिए गाड़ियां जाती है वो भी रो रहे हैं, बोलते हैं इस साइड वाला जो रोड है 23 किलोमीटर वाइल्ड डिवीजन के साथ ये बिल्कुल खस्ते हाल है। जो परली साइड वाला रोड है वो बिल्कुल अच्छा ही बनाया है। यहाँ पे बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि काम जो भी करना होता है तमीर तरक्की के लिहाज से वो बड़ी खुश असलूबी से करना चाहिए, उस तरह से करना चाहिए कि 1 साल या 6 महीने के बाद दोबारा करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर हम इस सड़क की बात करेंगे जो मरगन टॉप का रास्ता है जो अनंतनाग के साइड में गडोल के साइड में पड़ता है, उसमें जो काम है बिल्कुल उस तरह से नहीं हुआ है जिस तरह से होना चाहिए। अगर देखेंगे 6 महीने के बाद ही इसमें गड्ढे पड़े हैं, पूरी तरह से इसमें ये जो प्रोटेक्शन बंद बनाए गए थे वो भी पूरी तरह से डैमेज हुए हैं। इन जगहों के लिए जो राब्ते हैं, जो कनेक्टिविटी है, उनको बहाल रखा जाए। हमेशा कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि ये रास्ता कभी बंद ना पड़े, तब जाके इन जगहों पे हम फ़रोग दे सकते हैं सयाहत को, और सयाहत से हम अपनी इक्तिसादियात को भी ठीक कर सकते हैं। और ये जो कश्मीर को बार बार ये कहा जा रहा है कि जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत का टुकड़ा है, तो ये तब बरकरार रहेगा जब इस पे काम किया जाएगा। गांदरबल ज़िले के हुसन कंगन के लोगों ने इलाके के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिब्बी सहूलियात के फुकदान की शिकायत की। लोगों के मुताबिक PHC में माहिर अमराज निस्वां की अदम दस्तयाबी की वजह से हामिला ख्वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने एक्सरे मशीनों को अपग्रेड करने और PHC में दीगर सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। नाम रसूल है, मैं यहाँ का रहने वाला, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के जरिए मतलब हूँ। यहाँ पे हमें बहुत सी प्रॉब्लम है। ये नेशनल हाईवे पे, बिल्कुल नेशनल हाईवे पे कंगन सब डिवीजन का पहला अस्पताल है। कंगन में सबसे बड़ा अस्पताल हमारा ट्रामा अस्पताल है। ट्रामा अस्पताल को ये इतने मदद देता है, 200-250 पेशेंट तकरीबन पर डे ये देखा जाता था पहले 2019 से पहले। क्या वजह है यहाँ पे पेशेंट कम हुई है? वजह यही है कि यहाँ पे फैसिलिटी उतनी नहीं रही। पहले से यहाँ पे डेंटल सेक्शन भी अच्छा चलता था, लेबर रूम भी, गायनी भी अच्छा चलता है, जनरल मतलब OPD भी अच्छा चलता था, सारा कुछ अच्छा चलता था। आपने देखा है कि यहाँ पे हमारा एक्सरे की जबरदस्त अशद जरूरत है, डिजिटल एक्सरे की। यहाँ में पुरानी एक्सरे मशीन लगी है, मेहरबानी करके वो हमें नई मतलब डिजिटल दिलाया जाए। यहाँ पे लेबर रूम हमारे टोटल डिफेंस है। वजह यह है कि यहाँ पे लेडी डॉक्टर नहीं थी। NHM के तहत यहाँ लेडी डॉक्टर थी, उसको कहीं अटैच किया गया। मेहरबानी करके उसको वापस यहाँ मतलब डिप्यूट किया जाए। प्रॉब्लम ये थी कि मिसाल के तौर गोडनिक एक्सरे की पावर ग जनाब। दोम प्रॉब्लम अगर सोलर प्लेट लगिक तो कम खत लग जनाब, वनस तान ग ठीक कहें लगित तम पोस तड़म तो ना तब पे पावर होमुत जनाब, ना होमुत क्या। तो बे सफाई वोल बिचौर सह क्या कर 24 घंटन मज नफर ये सह नफर रात क्या दोहस क्या। डॉक्टर लेडीज डॉक्टर सो जनाब वनस तान वुचम यम दह आय तब पे वनस तान वुचम जनाब ये कहीं। सो दोप सोजो वनस तान सह योर सोजम माज बेन योर मिसाल के तौर लेडीज डॉक्टर गई तिहद खतर सो तिहद खतर अवेलेबल कहीं। अगर माज बेन तीन ज़िले किश्तवाड़ के दूर इफ्तादा इलाका जात मड़वा वाडवान में बर्फबारी के पेश नज़र लोग 6 महीने का राशन का ज़ख़ीरा करते हैं। राशन के साथ साथ LPG गैस सिलेंडर, मिट्टी का तेल व डीजल और पेट्रोल का ज़ख़ीरा किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी किस्म की कोई मुश्किलात पेश न हो। असिस्टेंट डायरेक्टर शफ़क़त हुसैन ने मड़वा वाडवान के लोगों से अपील की है कि राशन कार्ड्स के लिए अपने अपने दस्तावेज़ात इलाके के सेल्समैन के पास जमा करें और KYC भी अपडेट कराएँ। मैं हर स्टोर में गया, लोगों से मिला, लोगों को मैंने हर चीज़, हर स्कीम के बारे में जानकारी दी। लोगों को पूरा कोटा के बारे में बोला कि हर स्टॉल को जो है कितना राशन मिलना चाहिए।
और मैंने उनको ये भी कहा कि जो भी आपको कोई ग्रीवेंस होगी किसी भी तरह की, वो डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि मड़वा वार्ड 1 जो है हमारा सबसे टफ एरिया है J&K का। इसमें बीच में एक मरगन टॉप पड़ता है। मरगन टॉप में हैवी स्नोफॉल होने की वजह से लगभग 6 महीने हमारा पूरा ब्लॉकेड रहता है मड़वा वार्ड में। इसलिए हम 6 महीने के लिए वहाँ डंपिंग करते हैं, जो दिसंबर से शुरू होता है। दिसंबर से मई तक हम 6 महीने के लिए एडवांस डंपिंग करते हैं। उसके लिए हमें राशन जो है सबसे पहले FCI अनंतनाग मीर बाज़ार में आता है, वहाँ से हम लिफ्ट करके एक हमारा वुडलिप ज़ीनागर में महकमे समाजी बहबूद सोपोर की जानिब से बुज़ुर्गों के लिए एक मेडिकल कैंप और कल्चरल प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। इन बुज़ुर्गों के लिए बांड पातर का भी अहतमाम किया गया था, जिससे उन्होंने खूब लुत्फ़ उठाया। इस दौरान तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर सोपोर फैयाज़ अहमद ने कहा कि इन प्रोग्रामों से इन बुज़ुर्गों के अंदर खुशी का एहसास पैदा होता है। आपने देखा कि ये सीनियर सिटीजन्स के लिए हमने प्रोग्राम रखा था। इसमें हमने 3 कंपोनेंट्स को ऐड किया था। एक इसमें जो फ्री मेडिकल कैंप जो हेल्थ अथॉरिटी से डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने इनको चेकअप किया, मेडिकल चेकअप किया और इनको रिकमेंड किया कि दवाई टेस्ट वगैरह। सेकंड इसमें हमने रखी थी अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट स्कीम्स, नॉट ओनली सोशल वेलफेयर, जो बाकी डिपार्टमेंट्स की भी स्कीम्स है उनके बारे में भी हमने इनको अवेयर कर दिया यहाँ पे। और उसमें हमने 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया। उसमें आपने देखा कि कल्चरली जो भांड पत्र के ज़रिए, उसके ज़रिए भी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की। तो मैंने बोला एक तो 2 चीज़, और तीसरा यही कल्चरल प्रोग्राम जिसमें हमने इनको थोड़ा बहुत जो एस्थेटिक सेंस होता है थोड़ी खुशी देने की कोशिश की। सोशल मीडिया में हम इतना ज़्यादा गुम हो गए हैं कि आजकल हम अपने घरों में जब जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि दूसरे कमरे में हमारी माँ है, हमारे बाप है। तो इस वजह से ना वो एक किस्म की वो दूरी जैसी पैदा हो गई है। ये लोग तरस रहे हैं कि कोई इनके साथ बात करे, तो इसलिए हम इनके लिए ज़िले पुलवामा के एक निजी तालीमी इदारे डॉल्फिन इंटरनेशनल स्कूल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने मुख्तलिफ रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। प्रोग्राम में बच्चों के वालिदैन के अलावा ज़िले की सरकर्दा शख्सियात और महकमे तालीम के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर बच्चों ने माहौलियात को बचाने, तेंदुओं को बचाने और दीगर कई मौज़ूआत पर मुख्तलिफ ड्रामे पेश किए, जिनमें हाज़रीन काफ़ी मुतासिर हुए। इस मौके पर CEO पुलवामा ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद करने से बच्चों में एक एहसास पैदा होता है कि वो अपने इर्द गिर्द किस तरह हिफाजत कर सकते हैं। EDDC ने बच्चों को पढ़ने लिखने के साथ साथ इस तरह के प्रोग्राम में हिस्सा लेने पर जोर दिया। ये डॉल्फिन इंटरनेशनल स्कूल ये इंटरनेशनल लेवल पर एजुकेशन को समझे बूस्ट कर रहा है। इनके जो चेयरमैन हैं वो एक मिशनरी आदमी हैं, जैसा कि मुझे आज तारफ़ हुआ लगा उनकी बातों से, उनके इस सारे एटीट्यूड से। हम एक ही कश्ती के सवार हैं, और वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उनके अंदर अगर मिशनरी लोग हों तो उन इंस्टीट्यूशन का काम जो है दूसरे इंस्टीट्यूशन से अलग होता है। कि हमारे जो बच्चे हैं अच्छे मुस्तकबिल की तरह वो बढ़ रहे हैं, और हमारे जो यहाँ पर टीचिंग स्टाफ है और चेयरमैन फाजली साहब की सरबराही में बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो यहाँ पर पेरेंट्स भी आए थे उनको भी हमारी मैसेज थी कि वो बच्चों को एक ही खाली करगिल सिविल सोसाइटी ने फ़लस्तीन की हिमायत में कैंडल मार्च का इनेकाद किया। करगिल सिविल सोसाइटी करगिल ने मंगल की शाम एक पुरअमन कैंडल लाइट मार्च के ज़रिए फ़लस्तीनी अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती का इजहार करने के लिए अपना अज़्म दोहराया। फ़लस्तीन में जारी सूरत हाल के लिए हमदर्दी और तशवीश के इजहार के तौर पर मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम में करगिल कम्युनिटी के शुरका का नुमाया टर्न आउट देखा गया। कैंडल लाइट मार्च कबड्डी नाला से शुरू हुआ और मेन बाज़ार की हलचल वाली गलियों से होता हुआ बिलाखिर लाल चौक करगिल पर इख्तिताम पजीर हुआ। हज़ारों अफराद की नज़र, जिनमें से हर एक के पास मोमबत्ती थी, इन्होंने सड़कों को रोशन कर दिया और फ़लस्तीनियों की हिमायत का पुरजोश पैगाम भेजा। लाल चौक में जलसे आम से मौलाना फ़िरोज़ रब्बानी, हाजी हनीफ़ा जान, सज्जाद करगिल समेत सरकर्दा रहनुमाओं ने खिताब किया। उनकी तकारीर ने इसराइली हुकूमत की तरफ से गज़ा में जंगी जराइम के मुर्तकिब के हवाले से बैनुल-अक़वामी तवज्जो और मुदाखलत की अशद ज़रूरत पर जोर दिया। जमा होने वाले हुजूम से जज्बाती अंदाज में खिताब करते हुए सज्जाद करगिल ने फ़लस्तीन में पैदा होने वाले संगीन इंसानी बहरान पर जोर दिया। उन्होंने मासूम जानों की ज़िया पर गहरी तशवीश का इजहार किया, बिलखुसूस बच्चों का वहशियाना कत्ल इंतहाई काबिल मज़म्मत करार दिया। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो
इसराइली सदर बेंयामिन नेतन्याहू को नस्ल कुशी के लिए जवाबदेह ठहराया और उनकी फौरी गिरफ्तारी का उन्होंने मुतालबा किया। करगिल में मोमबत्ती मार्च करगिल के लोगों के फ़िलिस्तीनी अवाम के साथ उनकी ज़रूरत की यकजहती का सबूत है। करगिल सिविल सोसाइटी को उम्मीद है कि उनकी इज्तिमाई आवाज़ आलमी बरादरी के साथ गूंजेगी और फ़िलिस्तीन में जारी बहरान को हल करने की फौरी ज़रूरत की याद दहानी का काम करेगी। हम देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से इसराइल ने बेदरीग बमबारी का सिलसिला शुरू कर रखा है। गाज़ा पट्टी में हर रात सैकड़ों हज़ारों बम गिराए जाते हैं और अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये कहा जा रहा था कि हिरोशिमा के अंदर जो अमेरिका ने एटम बम गिराया था उससे ज़्यादा तादाद का बारूद जो है वो गाज़ा पट्टी के अंदर गिराया जा चुका है। छोटे छोटे बच्चे मलबों पर से उनकी लाशें निकाली जा रही हैं, औरतों को निशाना बनाया जा रहा है, आम सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। मुझे ये बताइए कौन सा जंगी उसूल है जहां सिविलियन आबादी को, हॉस्पिटल्स को, यूनिवर्सिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है? पानी तक बंद है, इलेक्ट्रिसिटी तक बंद है, खाना तक बंद है, रसद। वादी कश्मीर में घराट यानी पानी से चलने वाली चक्की का इस्तेमाल आज भी हो रहा है, लेकिन दौर जदीद में इसकी मानवियत काफ़ी कम होती जा रही है। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। कश्मीर में आज भी पानी से चलने वाली चक्की की पुरानी रिवायत बरकरार है। मकामी ज़बान में इसे घराट कहा जाता है। मकई, चावल, गंदम और दीगर कई चीज़ों को पीसने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस चक्की में दो भारी पत्थरों को मुतवाज़ी एक के ऊपर एक रखकर पानी के तेज़ बहाव की मदद से घुमाया जाता है और मुख्तलिफ़ चीज़ों को आसानी से पीसा जाता है। लोगों का कहना है कि बिजली से चलने वाली मशीनें तेज़ रफ्तारी से चलती हैं, जिसकी वजह से अजनास में मौजूद खूबी और जायका भी ख़त्म हो जाता है। वहीं रिवायती चक्कियों में अजनास का जायका बरकरार रहता है। वजह गो यह तुई यथ आज वन बराबरी ग्राट वालन कहीं होत मोकलो रीजिक क्या अत गई भागात ज्यादा वन कनाल मानोट कहीं वजह सपदो यी अवे मूजूब सुन ग्राट वालो ग्राटे त्रयित आको रशी ग्राट सो गुजरो सो गनी वीर लोग मुलाजिम पर ट्रांसपोर्ट तम तो सुन ग्राटे त्रयित लिहाजा कर वह बिचौर कर जड़ा जड़ा यह क्या अत हेको ना हद कर ये 9 लाख ग्राटा गुर 5-6 तो बे यजबेट पे वनकन ती ना अट मूजूब सोत मकाई ओट कड़ान तुमल ओट कड़ान यह सा वनकन ये तमाम वनकन यूर कंजलवन पे यह सा सराही पे वातान योत लोग यस वो मशीन पावरस पर अत मज़ कह तथ पसंद करान कहीं हसा बचावन ये मतलब सारे कर हमथा वमथा यमिस पकन बिचौर कंस तुमल सेर सत सेर सह वातन योत। जदीद दौर में अब घराट का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। असरी आलात ने इस कदीम चक्की की जगह ले ली है। लोगों का कहना है कि दूर इफ्तादा इलाकों में बर्फबारी के दिनों में बिजली बंद रहती है। ऐसे में पानी पर चलने वाली चक्की साल भर दस्तयाब रहती है। चंद लोग अब भी इस कदीम रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं। मुंसिफ टीवी के लिए बीज बहाड़ा कश्मीर से गजाला निसार की रिपोर्ट।